ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨੇ ਸੁਹਾਣੇ ਪਲ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਸਮਝਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸੋਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। आओ मिलके प्रभु वचन पढ़िए। आज ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ Psalm 55 verse 16 to 22। मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ, ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 18 verse, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 19th verse, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਦਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। verse 20 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। verse 21, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੂਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸੀ। verse 22, ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਔਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਂਜਲਸ ਭੇਜਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਐਂਜਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਂਜਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਘਰ ਰਹਿਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਜਲਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗॉड ਜੀ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हालेलुया। आओ मिलके आप भजन गाइए। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई। जी आज तो पहले किसी वर्शिप शुरू करी, मैं तुम्हें याद कराना चाहूँगा कि आज इस महीने का तीसरा एतवार है, तीसरा संडे है, और जिस तरह तुम सारे जानते हो कि थर्ड संडे को ਅਸੀਂ कम्यूनियन करते हैं। सो मेरा ईमान है तुम सब ने अपने को कम्यूनियन का समान रख लिया होगा। जे भी तुम अपने को नहीं रखा या तुम्हें याद नहीं रहा, तो जो ਅਸੀਂ वर्शिप करिए तो तुम अपने को समान का अरेंजमेंट कर लेना। वर्शिप तो बाद कलाम होएगा, तो कलाम के बाद ਅਸੀਂ मिल के प्रभु ਦੇ ਇਸ भोज शामिल होवांगे। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, और इस मेज ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, शामिल होवांगे। सो आओ प्रभु ਦੀ वर्शिप करते हैं, हथ उठा के ताड़ियां मारते हुए प्रभु जी का गीत गाइए। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई। शाम सुबह दोपहर मैं फरियादा गुजारा, शाम सुबह दोपहर मैं फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब पुकारा, सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब पुकारा। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, उन्हां दे जंग विचों रब ने मेरी जान बचाई, उन्हां दे जंग विचों रब ने मेरी जान बचाई, उन्हां दा शुमार सी बहुता करदे जो लड़ाई, उन्हां दा शुमार सी बहुता करदे जो लड़ाई। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, दुश्मनां दे ताने सुन के रब जवाब सुनावे, दुश्मनां दे ताने सुन के रब जवाब सुनावे, मुर्द कदीमों बैठा है वो तख्त नया दिल उठे, मुर्द कदीमों बैठा है वो तख्त नया दिल उठे। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, अपना भार यहोवा ते सुध आपे ओ संभाले, अपना भार यहोवा ते सुध आपे ओ संभाले, सच्चे नूं हमेशा तीकर कदी न तिलकण दे, सच्चे नूं हमेशा तीकर कदी न तिलकण दे। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हुण तुसीं पास्टर जी पासों वचन सुनो। आज जिस संसार में हम रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि the wicked people are having a great time. जो दुष्ट लोग हैं वो बड़े आनंद में हैं, वो सफल हो रहे हैं, वो समृद्धशील हो रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के धर्मी बच्चे हैं वो सफर कर रहे हैं, उनके ऊपर दुख ही दुख आ रहा है। ऐसे लगता है कि जो चीट करते हैं, धोखा देते हैं सरकार को, चाहे टैक्स में या किसी और तरह का धोखा देते हैं, वो पढ़ रहे हैं, भर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो हिपोक्रेट हैं,
जो बाहर से हो रहा है अंदर से कुछ हो रहा है, अपनी मीठी जुबान से लोगों को आकर्षित करते हैं और उनकी वाह वाह होती है, वो पॉपुलर होते हैं, लेकिन दिन के अंदर उनके अंदर मक्कारी भरी होती है। ऐसा लग रहा है कि सच का मजाक उड़ाया जा रहा है। सच क्या है, झूठ क्या है, समझना बहुत मुश्किल है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, नहीं समझ आता। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हम जानते हैं ये सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट, और हमें इस बात पे गुस्सा भी आता है, चिंता भी होती है। हमें लगता है कि ये बुरा है, ये गलत है कि जो दुष्ट लोग हैं वो फले फूले और जो धर्मी लोग हैं उनका नुकसान हो। और हम ये भी सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो परमेश्वर पिता है, इज अ राइचियस जज, वो धर्मी पिता है, वो सच्चा न्याय करते हैं। तो इस समय वो कहाँ खोए हुए हैं? क्यों वो सच्चा न्याय नहीं करते? क्यों जो दुष्ट है उनको दुष्टता का दंड नहीं मिलता, और क्यों जो धर्मी है उन्हें धर्मिता का फायदा नहीं होता? दरअसल हम इंसान ऐसे हैं कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, और जो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिसके पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उसको देख के हमें जेलसी होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हालांकि ये कंपैरिजन सही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें ये लगती है कि वो लोग जो दुष्ट हैं वो हमसे कैसे बेहतर है। हम तो अपने आप को धर्मी बनाने में लगे हुए हैं, प्रभु के वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, सही काम करते हैं जो प्रभु का वचन हमें सिखाते हम करते हैं, फिर वो दूसरे जो है दुष्ट लोग हमसे बेटर कैसे हैं? माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारा फोकस उनकी लाइफ होता है, अपनी लाइफ नहीं होता। दूसरा का धन दौलत हमें नजर आता है, और खासकर अगर वो धन दौलत बुरे तरीके से उन्होंने इकट्ठा किया तो हमें गुस्सा आता है, हमारे मन में ग्लानि आती है, और हमें सोचना शुरू कर देते हैं क्या बात है, क्यों दुष्ट लोग फल रहे हैं, क्यों धर्मी लोग नुकसान उठा रहे हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हम इस तरह कई बार उनकी जैसे बनने की कोशिश करते हैं, जैसा वो काम करते हैं दुष्ट लोग वैसा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि दुष्ट लोग सफल हो रहे हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, यूँ लगता है हमें जैसे अपने बुरे व्यवहार के कारण उनको रिवॉर्ड्स मिलने, उसे इनाम दिया जाता है। तो हमारे प्रश्न उठता है हमारे मन में, और आज प्रभु जी इसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं अपने वचन के द्वारा। प्रश्न हमारे मन में उठता है, व्हाई विकेड पीपल प्रॉस्पर एंड राइचियस सफर? व्हाई विकेड पीपल प्रॉस्पर एंड राइचियस सफर? यानी कि क्यों दुष्ट लोग समृद्धिशील हो रहे हैं और हम जो धर्मी लोग हैं हम क्यों पीड़ित हो रहे हैं? आइए आज इसी प्रश्न का जवाब हमें प्रभु अपने वचन में देंगे। प्रभु के वचन हम जाके एक भजन संहिता पढ़ेंगे, प्रभु जी का एक भजन पढ़ेंगे। ये भजन इस बात के लिए मशहूर है कि इसमें परमेश्वर ने दुष्ट लोगों को और जो धर्मी लोगों को उनको कंपेयर किया, उनके बारे में हमें बताया है। लेकिन इस भजन को हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर मनन भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम भजन पढ़ें, हमें ये समझने की कोशिश पहले करनी चाहिए कि पवित्र बाइबल के अनुसार धर्मी कौन है और दुष्ट कौन है। हम सोचते हैं दुष्ट वो है जो गुनाह करता है, जो चोरी करता है, जो बेईमानी करता है, और धर्मी वो है जो कभी कोई गुनाह नहीं करता, कभी कोई गलती नहीं करता। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर प्रभु के वचन में जाके देखें तो ये सही नहीं है। A righteous person is not a perfect person. जो धर्मी इंसान है वो ऐसा नहीं है कि कभी उसने कोई गलती ना की हो, उससे कभी कुछ ऐसा ना हुआ हो जिससे परमेश्वर नाराज हो। My brother and sister, the righteous word here stands for right standing with God. परमेश्वर के साथ जिसका स्थान है वो सीधा है, सही है। और my brother and sisters, पवित्र आत्मा के अनुसार अगर हम पढ़ें न्यू टेस्टामेंट तो हमें पता चलता है कि राइचियस पर्सन जो है वो है जो प्रभु के पीछे चल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर अपनी कोई धार्मिकता नहीं है, हमारे अंदर कोई राइचियस नहीं है। वी आर राइचियस बिकॉज ऑफ जीसस, बिकॉज ही इज राइचियस। सो इस वचन के अनुसार, इस तरह के अनुसार राइचियस वो है, धर्मी वो है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं,
जिन्होंने उनको अपना गॉड, अपना मुक्तिदाता माना है। इसी तरह दुष्ट लोग कौन है? हम सोचते हैं दुष्ट लोग वो हैं जो मर्डर करते हैं, जो अडल्ट्री करते हैं, जो चोरी करते हैं, चिकारी करते हैं, झूठ बोल के अपना फायदा करते हैं। हमें लगता है वो दुष्ट लोग हैं, लेकिन अगेन अगर पवित्र बाइबल के अनुसार देखें तो दुष्ट वो लोग हैं जिनमें प्रभु यीशु की राइचस नहीं है, जिनके अंदर प्रभु यीशु के कारण धार्मिकता नहीं है, यानी वो लोग जो परमेश्वर से दूर हैं और परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह से दूर हैं। सो इस बैकग्राउंड के बाद आइए हम देखते हैं, प्रभु जी का भजन पढ़ते हैं। और आज का जो भजन पढ़ने जा रहे हैं वो है Psalm 37, भजन संहिता 37। इस भजन के कुछ मेन वर्सेस हम लोग पहले पढ़ेंगे, साथ साथ उनको सीखते चलेंगे, समझते चलेंगे और अंत पे मनन भी करेंगे। तो आइए, मेरा विश्वास है अगर हम प्रार्थना के बाद इस भजन को पढ़ेंगे तो इट विल गिव अस जॉय, इट विल गिव अस एश्योरेंस, इट विल गिव अस कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड। हमें ये महसूस होगा कि हाँ, हम जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम जो पवित्र बाइबल की डेफिनेशन के हिसाब से राइचस एंड धर्मी है, हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सब खुशियां हमारे लिए हैं। तो आइए भजन पढ़ना शुरू करते हैं। वर्ष 1 से पढ़ते हैं। प्रभु में कहते हैं, दुर्जनों से मत घबरा, जो बुरा करते हैं ऐसे मनुष्यों से ईर्ष्या मत रख। डोंट बी एनवियस, जो लोग गलत काम कर रहे हैं। हमें शिक्षा दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं दुर्जन मनुष्य घास से और हरे पौधों की तरह शीघ्र पीले पड़ जाते हैं। they like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away। प्रभु अब समझा रहे हैं कि जो दुष्ट लोग हैं, जैसे घास उगता है लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, पीला पड़ जाता है, प्लांट उगते हैं लेकिन बहुत जल्दी वो सड़ जाते हैं, इसी तरह प्रभु हमें बता रहे हैं कि जो अधर्मी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनकी जो ये सक्सेस है, उनका जो धन दौलत है, ये क्षण भंगुर है, थोड़ी देर का है, थोड़ी देर में ही वो खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का जो परमानेंट इटर्नल लाइफ है उसको नकारा है और प्रभु के पीछे नहीं चले हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं तो प्रभु के इस भजन में looks like God is giving us a series of commands। हमें हुक्म दे रहे हैं लगातार कुछ ना कुछ, और ये कहना चाहते हैं कि हम जो उनके पीछे चल रहे हैं हम उनके ऊपर फेथफुली डिपेंडेंट रहे। आइए देखते हैं वर्ष नंबर 3। यदि तू यहोवा पर भरोसा रखेगा और भले काम करेगा तो तू जीवित रहेगा और उन सब वस्तुओं का भोग करेगा जो धरती देती है। हालेलुया। आगे कहते हैं, टेक डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ द हार्ट। कहते हैं प्रभु में खुश रह और वो तुझे तेरे दिल की मनचाही जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करेगा। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु में खुश रहते हैं, तो जो हम मांगेंगे वो मिलेगा। नो, वी आर स्लाइटली रॉन्ग। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, he will give the desire of our heart। किनको? जो प्रभु में डिलाइट होंगे। दरअसल होता क्या है कि जब प्रभु में खुश रहते हैं तो जो प्रभु की इच्छा हमारे लिए है वही इच्छा हमारी बन जाती है, और जब प्रभु की इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है तो हमारी वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। My brother and sister, the lasting peace and satisfaction comes only from God, not from anybody else। न धन दौलत से, न नेम से, न फेम से। आगे प्रभु कहते हैं वर्ष 5 में, यहोवा के भरोसे रह, उसका विश्वास कर, वह जैसा करेगा जैसा तू, वह वैसा करेगा जैसे करना चाहिए, यानी कि he will do whatever is good for you। और आगे कहते हैं वर्ष 6 में, यहोवा तेरी नेकी और खरेपन को दोपहर के सूर्य सा चमकाएगा। हालेलुया। एक धर्मी इंसान की जो नेकी है, जो खरापन है, जैसे सूरज उगता है तो दूर से नजर आता है, सबको नजर आता है, पूरे संसार को नजर आता है, इसी तरह धर्मी व्यक्ति की जो नेकी और खरापन है सबको नजर आएगा। और आगे कहते हैं वर्ष 7 में, यहोवा पर भरोसा रख और उसके सहारे की बाट जो, तो दुष्टों की सफलता देखकर घबराया मत कर, तू दुष्टों की दुष्ट योजनाओं को सफल होते देखकर मत घबरा।
माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु हमें इस तरह का ढाढ़स भी दे रहे हैं और कमेंट्स भी दे रहे हैं। और जो बाकी जो ये बाकी का जो भजन है, दरअसल इट्स ए कमेंट्री बिटवीन लाइफ ऑफ अ विकेड पर्सन एंड अ राइचियस पर्सन। एक धर्मी इंसान और एक दुष्ट इंसान की लाइफ का कंपैरिजन है, क्योंकि दोनों ने दो अलग अलग रास्ते चुने हैं। एक ने परमेश्वर को बनाया, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, एक ने परमेश्वर को नकारा, दुनिया के धन दौलत को के पीछे चलना शुरू किया। तो दोनों की जो जिंदगी डिफरेंट होगी और दोनों का एंड भी डिफरेंट होगा। हालेलुया। आइए देखते हैं वर्स नंबर 9। क्योंकि बुरे लोगों को तो नष्ट किया जाएगा, किंतु वे लोग जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह धरती को पाएंगे जिसे देने का परमेश्वर ने वचन दिया है। दे विल इनहेरिट द लैंड। वो सब धन दौलत जो परमेश्वर ने वादा किया उन्हें मिलेगा। A little while and the wicked will be no more। कहते हैं थोड़े ही समय के बाद कोई दुर्जन नहीं बचेगा। हालेलुया। ढूंढने से भी तुमको कोई दुष्ट नहीं मिलेगा। और आगे कहते हैं बट द मीक विल इनहेरिट द लैंड। लेकिन जो नम्र लोग हैं वो धरती पाएंगे, जमीन जायदाद पाएंगे, एंड एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और उनके घर में शांति होगी, उनके यहाँ समृद्धि होगी। वर्स 12 में फिर कहते हैं प्रभु, दुष्ट लोग सज्जनों के लिए कुचक्र रचते हैं। दुष्ट जन सज्जनों के ऊपर दांत पीसकर दिखाते हैं कि वे क्रोधित हैं, किंतु हमारा स्वामी उन दुष्टों पर हंसता है। वो विकेट लोग जो हमारे ऊपर तरह तरह के अत्याचार, तरह तरह के बैड प्लान बना के हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं कि शायद वो सफल हो जाएंगे, लेकिन उनकी ये बातें देख के हमारे परमेश्वर हंसते हैं। For he knows their day is coming। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता है उनका बुरा दिन आने वाला है। वर्स 16, better the little that the righteous have। जो धर्मी लोग हैं उनके पास जो थोड़ा भी है वो कितना अच्छा है। इट इज मोर देन द वेल्थ ऑफ मैनी विकेड। बहुत सारे दुर्जनों की धन समृद्धि अगर इकट्ठी कर दें तो उससे भी ज्यादा जो धर्मी के पास थोड़ा सा उससे अच्छा है, क्योंकि दुर्जनों को तो नष्ट किया जाएगा, किंतु भले लोगों का यहोवा ध्यान रखता है। आगे बस 18 में प्रभु कहते हैं द ब्लेमलेस स्पेंड देयर डेज अंडर द केयर ऑफ गॉड। शुद्ध सज्जनों को यहोवा उनके जीवन भर बचाता है, उनका प्रतिफल सदा बना रहेगा। Their inheritance will endure forever। और आगे प्रभु कहते हैं कोई ऐसा इंसान नहीं, चाहे वो सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, लोग सबके ऊपर आता है, लेकिन धर्मियों के लिए प्रभु क्या वादा करते हैं, इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर दे विल नॉट विदर। जब संकट आएगा सज्जन पुरुष नष्ट नहीं होंगे। इन द डेज ऑफ फैमिन दे विल एंजॉय प्लेंटी। जब अकाल पड़ेगा तो सज्जनों के पास खाने को भरपूर होगा। लेकिन आगे क्या कहते हैं, बट द विकेड विल पेरिश। जो दुर्जन है वो खत्म हो जाएगा। दो द लॉर्ड्स आर्मीज आर लाइक द एनिमीज आर लाइक द फ्लावर्स ऑफ द फील्ड। ये जो दुर्जन है ये परमेश्वर के दुश्मन है और ये बाग में खिले फूल की तरह है। दे विल बी कंज्यूम्ड, दे विल गो अप इन स्मोक। वो हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएंगे। जैसे धुआं में सब कुछ जल के राख हो जाता है, इसी तरह वो जल के राख हो जाएंगे। यानी प्रभु ये कहना चाहते हैं कि उनका एंड क्या है, डिस्ट्रक्शन एंड डेसोलेशन। माय ब्रदर एंड सिस्टर, क्या वो थोड़ी देर के लिए सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन उनकी ये सक्सेस अनलिमिटेड टाइम तक नहीं रहेगी, उनके ऊपर प्रभु का प्रकोप आएगा। फिर ऐसे लोगों से क्यों जेलस होना, ऐसे लोगों से ईर्ष्या क्यों करनी जिनका अंत डिस्ट्रक्शन है, जिनका अंत विनाश है। वर्स 23 में अपने सज्जन बच्चों को प्रभु क्या आश्वासन देते हैं, द लॉर्ड मेक्स फर्म द स्टेप्स ऑफ द वन हु डिलाइट्स इन हिम। जो परमेश्वर में खुश होता है, परमेश्वर उनके कदमों को ताकत बख्शते हैं, शक्ति बख्शते हैं। दो ही में स्टम्बल, हालांकि उसको ठोकर भले ही लग जाए, ही विल नॉट फॉल, वो गिरेगा नहीं। फॉर द लॉर्ड अपहोल्ड्स हिम विद हिज हैंड, क्योंकि परमेश्वर अपने हाथ के साथ उसे संभाले रखता है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, गुड पीपल डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ गॉड।
दुर्जन परमेश्वर के बिना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो सज्जन है वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। इसलिए परमेश्वर, अगर उनसे कोई गलती भी हो जाएगी, कभी गिर भी जाएंगे, कभी गुनाह भी हो जाएगा, तो वो गिरे नहीं रहेंगे, यानी उन त्यागे नहीं जाएंगे। परमेश्वर उनका हाथ पकड़ के उनको उठा लेगा। My brothers and sisters, they may lie down on ground for a time, but God will take them out. आगे 25 वर्ष में भजन लिखने वाला हमें आश्वासन देता है। क्या कहता है? I was young and now I am old. पहले मैं युवक हुआ करता था, पर अब मैं बूढ़ा हूँ। मैंने कभी यहोवा के सज्जनों को असहाय छोड़ते हुए नहीं देखा। I have never seen the righteous forsaken or their children's begging bread. और ना ही उनके बच्चों को मैंने भीख मांगते हुए देखा है। For the Lord loves the just. क्योंकि प्रभु यहोवा खरेपन से प्रेम करता है। वे अपने निज भक्तों को असहाय नहीं छोड़ता। यहोवा अपने निज भक्तों की सदा रक्षा करता है और वह दुष्टजनों को नष्ट कर देता है। अब आगे वर्ष नंबर 20-32 में प्रभु हमें आश्वासन दे रहे। प्रभु कहते हैं, द विकेट लाई इन वेट फॉर द राइचियस। दुर्जन सज्जन को दुख पहुंचाने के लिए रास्ता ढूंढता रहता है और दुर्जन सज्जन को मारने के लिए यत्न करता है, किंतु यहोवा दुर्जनों को मुक्त नहीं छोड़ेगा, उन्हें फ्री नहीं छोड़ेंगे। वह सज्जन को अपराधी नहीं ठहरने देगा। आगे वर्ष 35 में प्रभु एक और एग्जाम्पल देके हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं, I have seen a wicked and ruthless man flourishing like a native tree. कहते हैं, मैंने एक दुष्ट को बलशाली देखा है, मैंने उसे मजबूत और स्वस्थ वृक्ष की तरह शक्तिशाली देखा है, but he soon passed away. लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। And was no more. वहाँ था ही नहीं। Though I looked for him, हालांकि मैंने उसी जगह जहाँ वो कल था उसे आज ढूंढने की कोशिश की, he could not be found. वह उसे मिल नहीं सका। लेकिन कहते हैं, प्रभु हमें शिक्षा देते हैं, कंसिडर द ब्लेमलेस। कहते हैं सच्चे और खरे बनो, क्योंकि इसी से शांति मिलती है। आगे कहते हैं वर्ष 38 में, बट ऑल सिनर्स विल बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन जो गुनाहगार हैं, जो दुर्जन है, वो खत्म किए जाएंगे। देयर विल बी नो फ्यूचर फॉर द विकेड। जो दुर्जन है, बुरे लोग हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। जो आज प्रेजेंट ही और प्रेजेंट इनका खत्म हो जाएगा। The salvation of the righteous come from the Lord. जो धर्मी हैं, उनकी जो रक्षा है, उनकी जो मुक्ति है, वो परमेश्वर से आती है। He is their stronghold in times of trouble. और विपत्ति के समय सज्जनों के लिए यहोवा उनकी शक्ति है। So my brothers and sisters, अगर आप राइचियस और आपको लगता है आपकी विपत्ति आ रही है, तो विपत्ति आ रही है, sometimes we feel powerless, sometimes we feel weak, sometimes we worry, but God is our strength. God will help us. आइए लास्ट वर्ष पढ़ते हैं जो प्रभु में आश्वासन दे रहे हैं। ये आपके लिए और मेरे लिए और सबके लिए जो सज्जन की तरह अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उनके लिए प्रभु क्या कहते हैं? The Lord helps them and delivers them. यहोवा नेक जनों को सहारा देता है और उनकी रक्षा करता है। सज्जन यहोवा की शरण में आते हैं और यहोवा उनको दुर्जनों से बचा लेता है। हालेलुया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए अब कुछ पल इस भजन पर थोड़ा मनन करें। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नटशेल ये है कि हालांकि दुर्जन लोग थोड़े समय के लिए समृद्धशील हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, और जो सज्जन हैं वो कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन जो विकेड लोग हैं उनका जो ये वैभव है, उनके जो ये रिवार्ड्स हैं, उनकी जो ये धन संपत्ति, उनका जो ये नेम फेम है, इट इज फ्लीटिंग, विच मीन्स ये क्षण भंगुर है। लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनकी जो जिंदगी है वो इटर्नल है, उनकी ब्लेसिंग्स इटर्नल हैं, हमेशा की है। लेकिन दुर्जनों की जो प्रॉस्पेरिटी है वो शॉर्ट लिव्ड है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु के बेटे बेटी होने के नाते, प्रभु के अच्छे बच्चे होने के नाते हमारा जो धन दौलत है वो डिफरेंट है। हमारे पास जो धन दौलत है वो ऐसा है जो हमेशा रहेगा। दुनिया की नज़र में शायद हम लोग गरीब हों, लेकिन परमेश्वर जो हमें बरकत दी है वो अनंत तक हमारे साथ है, हमें स्वर्ग लेके जाएगी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर के बिना
जो हमारी जिंदगी है वो बड़ी स्केरी है, बड़ी डरावनी है, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी है। तो प्रभु ये कहते हैं कि हमें उनसे जलना नहीं चाहिए, चाहे वो अभी कुछ समय के लिए वैभवशील हो रहे हैं, हमें उनसे एनवी नहीं करनी चाहिए। उनका एक दिन आएगा जब उनका सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा। आप सोचते होंगे ऐसा अभी क्यों नहीं कर रहे परमेश्वर, क्यों दुष्ट लोग बढ़ते जा रहे, फैलते जा रहे, अभी परमेश्वर किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्यों उनका सामर्थ्य हाथ नहीं उठता, क्यों वो फैसला नहीं करते, राइचस को रिवार्ड्स मिले और अनराइचस को उसका दंड मिले। आइए इसका जवाब भी प्रभु के वचन में मिलता है। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9, दूसरा पतरस अध्याय 3 पद 9, द लॉर्ड इज नॉट स्लो इन कीपिंग हिज प्रॉमिस। परमेश्वर अभी जो मैं इस भजन में वायदा किया उसको पूरा करने में धीमे नहीं है, एज सम अंडरस्टैंड स्लोनेस, जिस तरह कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद प्रभु स्लो है इसलिए दुष्टों को उनका दंड नहीं मिल रहा। ही इज पेशेंट विद यू, वो सबके साथ धैर्यशील है, नॉट वांटिंग एनीवन टू पेरिश। परमेश्वर चाहते हैं कोई भी ना नष्ट हो, इंक्लूडिंग अनराइचियस पीपल, इंक्लूडिंग विकेड पीपल, बट एवरीवन टू कम टू रिपेंटेंस। लेकिन सब मन फिर आपकी तरफ आ रहे हैं। दरअसल परमेश्वर उनके ऊपर प्रकोप अभी क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहे हैं, शायद ये मेरा बच्चा तो दुष्ट काम कर रहा है, शायद ये बदल जाए, शायद इसको अपनी गलती का एहसास हो, शायद इसका मन फिराब हो जाए, शायद ये रिपेंट करे और मेरे पीछे चलना शुरू कर दे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु का वचन आज भी ये आश्वासन देता है। अगर आप ये फील करते हैं, अगर आपकी ये सोच है कि हम जो धर्मी हैं, जो धर्म के काम करते हैं, जो प्रभु के पीछे चल के वो सब कुछ करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं जो परमेश्वर के दुर्जन लोग नहीं कर रहे और हमें उसका कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा, तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ प्रभु के वचन से एक दृष्टांत ला के, ऐसा आज के ज़माने में नहीं, अनंत काल से ऐसा ही होता आया है। पुराने ज़माने में, ओल्ड टेस्टामेंट के ज़माने में भी धर्मी लोगों को तकलीफें ज़्यादा थी और तो दुर्जन थे वो सफलता पा रहे थे, उनके पास धन दौलत नहीं थे, बहुत उस समय भी ऐसा हुआ था। और उस समय प्रॉफिट मलाकी के ज़माने में ऐसा हुआ था। जब प्रॉफिट मलाकी के ज़माने में लोगों ने, जो धर्मी लोग थे, जब इसी तरह की बातें आपस में की कि क्या बात है, क्यों दुष्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं, फूलते फूलते जा रहे हैं, कि हम धर्मी लोग कष्ट में हैं, तो उस समय क्या हुआ आइए देख के पढ़ते हैं। बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 16 to 18, मलाकी अध्याय 3 पद 16 से 18। Then those who feared the Lord talked with each other, वो लोग जो परमेश्वर से डरते थे, धर्मी थे, उन्होंने आपस में बात की कि क्या बात है, दुष्ट क्यों बढ़ते फूलते जा रहे हैं, हमें क्यों कष्ट मिलते हैं। और प्रभु का वचन कहते हैं The God listened and heard, और परमेश्वर ने उनकी बात सोची, सुनी। A scroll of remembrance was written in His presence, और परमेश्वर की उपस्थिति में उनकी याद में एक पुस्तक लाई गई और उसमें उनका नाम लिखा गया, किनका? Those who fear the Lord and honored His name, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर का भय माना और जिन्होंने उसके नाम का सम्मान किया। और फिर उनको परमेश्वर ने उनकी बात सुन के आश्वासन दिया। विश्वास रखें, आज हम जो ये सोच रहे हैं कि क्यों दुर्जन भर रहे हैं, फल फूल रहे हैं, हम क्यों दुख पा रहे हैं, आपको ये जवाब प्रभु देने जा रहे हैं। प्रभु ने उनको क्या जवाब दिया था, वही जवाब हमारे लिए वर्स 17 में। On the day when I act, जिस दिन मेरा सामर्थी हाथ उठ गया, they will be my treasure possessions, वो लोग जो मेरे धर्मी हैं वो मेरे लिए एक अत्यधिक प्यारी खजाना होंगे। I will spare them, मैं उन अपने सज्जन लोगों को बचाऊंगा, जैसे कि एक पिता अपने उस बच्चे को हर कष्ट से बचाता है जो उसकी सेवा करता है। And you will again see the distinction between the righteous and wicked, फिर मैं दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। आप एक बार फिर दुर्जनों में और सज्जनों में जो भेद है वो देखेंगे, बिटवीन दोज हु सर्व गॉड एंड दोज हु डू नॉट सर्व गॉड, वो लोग जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और वो जो लोग परमेश्वर की सेवा नहीं करते, वो जो सज्जन है
वो जो दुर्जन है उनका भेद आप अपने आप देखेंगे। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, निराश मत हो, परेशान मत हो कि आप जो अच्छे काम कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के कलीसिया की सेवा करते हैं, परमेश्वर के दुखी बच्चों को हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, वचन बांटते हैं, भजन पढ़ते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आप निराश ना हो, ये मत सोचिए कि आपको इसका फल नहीं मिलेगा। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ए डे इज कमिंग, वो दिन आ रहा है। परमेश्वर को ही पता वो दिन कब आएगा, लेकिन वो दिन आ रहा है जब ही विल डिस्टिंग बिटवीन राइचियस एंड विकेड, जो धर्मी और दुर्जन लोगों के बीच में एक बार फिर अंतर करेंगे। और जिस दिन वो हुआ, उस दिन क्या होगा, उस दिन सज्जन लोगों के साथ क्या बरकत नहीं मिलेगी, इसका जिक्र भी आता है प्रभु की पुस्तक में, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 4 वर्स 2। मलाकी की इंजील अध्याय 4 वर्स 2। द सन ऑफ राइचियसनेस विल राइज विद हीलिंग ऑन इट्स विंग, और वो जो सज्जन लोग हैं उनके ऊपर जो प्रभु की हीलिंग का सूरज है, ऐसे चमकेगा जैसे सूरज दिन के समय चमकता है। एंड यू विल गो आउट, और फिर आप स्वतंत्र होकर बाहर निकलेंगे। एंड लीव लाइक काव्स रिलीज फ्रॉम द स्टॉल, जैसे जब बछड़े को हम किसी जगह किसी पिंजड़े में कैद कर देते हैं और जब उसको हम छोड़ते हैं तो कैसे वो उछलता कूदता खुशी मनाते हुए फ्रीडम में उछलता कूदता है, इसी तरह आप लोग खुश होंगे। आज शायद आप निराश हो कि विकेट बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि उस समय सबको आपकी सच्चाई नजर आएगी, जैसे सूर्य नजर आता है। वो आप भी उस बछड़े की तरह खुशी मनाते हुए इस पिंजरे से बाहर निकलेंगे। हालेलुया! व्हाट ए ग्रेट ग्रेट पिक्चर ऑफ गॉड्स जजमेंट। हमारे परमेश्वर सच्चे न्याय हैं, वो सच्चा न्याय करेंगे। अभी उन्होंने हाथ रोका हुआ है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो दुर्जन लोग जो है इस धरती पे वो भी मन फिराव लें, वो भी उनके पीछे चलना शुरू कर दें और उनकी भी जिंदगी बदल जाए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु के वचन में लिखा है, ही विल रिवार्ड यू इफ यू फेंट नॉट। अगर हम लोग मूर्छित ना हो, यानी धीरज ना खोएं, तो हमें हमारे सारे रिवार्ड, सारे इनाम मिलेंगे। सो बी ऑफ गुड चीयर, खुशी मनाएं कि परमेश्वर आपकी एक एक बात को नोट कर रहे हैं और सही समय पे वो आपको वो सारे इनाम, वो सारी बरकतें देंगे जिसके आप हकदार हैं, और जो दुष्ट जन है वो हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएंगे। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जो है सुले प्रभु भोज दा वक्त साढ़े सामने प्रभु दा बेच लग्या होया है। प्रभु दे वचन च लिखिया है, हुका साम 23 वर्स 5, भजन संहिता अध्याय 23 पद 5। You prepare a table before me in the presence of my enemies। तुसी दुश्मनां दे सामने मेरे लिए बेच तैयार कीती है। My brother sister, ए प्रभु भोज तैयार है तुम्हारे सामने, और मेरा ईमान है तुसी अपने घर विच भी प्रभु भोज रख लिया होगा। ए मेज प्रभु भोज दा मेज है, और किदे सामने परमेश्वर ने बिछाया है? दुश्मन दे सामने। और साडा दुश्मन कौन है? शैतान है। सो माय ब्रदर सिस्टर्स, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਫੀਟ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜ ਲਵਾਂਗੇ। आओ मिलके प्रभु जी का गीत गाइए जो हमेशा असी गाने हैं, मैं तेरा बदन क्यों ना लूँ, और नाल ही तुसी अपने को जे भी कम्यूनन ने रखा रख लो, तो फिर मिलके असी कम्यूनन लावांगे। सो आओ मिलके गीत गाने हैं। मैं तेरा बदन क्यों ना लूँ नासरी, मैं तेरा बदन क्यों ना लूं नासरी, के पिन्हा है इसमें मेरी जिंदगी, मैं तेरा बदन क्यों ना लूं नासरी, मैं तेरा
ਨਾ ਲੂੰ ਨਾਸਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਇਸ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਂਗੇ। 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 25। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਨ ਅਧਿਆਇ 11 ਪਦ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਪੋਸਟਲ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਰੋਟੀ ਲਈਏ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਬਦਨ ਹੈ ਜੋ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁੜਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਖਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Verse 25। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰਾਰ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਓ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰਸ ਸਿਸਟਰਸ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਹੈ ਜੋ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖੂਨ ਹੈ ਰਸ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और इस लहू को याद करते हुए, प्रभु जी के लहू का धन्यवाद करते हुए गीत गाइए। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਡਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਰਡਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ,
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਰਸਾਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। God bless you my brothers and sisters. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਜੋ ਸੋਹਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ सारे मिलके कहिए, प्रभु यीशु जिंदा है। God bless you. God bless you. God bless you.